السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو تم شک مت کرنا اور میری اتباع کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور کہیں شیطان تمہیں اس بات سے روک نہ دے، اس سے روک نہ دے۔ سمجھا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 61 62 61 62۔ سورہ زخرف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، انہ علم الساعۃ، تو تم شک مت کرنا۔ کیا شک نہیں کرنا؟ کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، کوئی اور ہے، عیسیٰ نہیں آئیں گے، یہ سب شک مت کرنا، یہی سیدھی بات ہے۔ سمجھے آپ؟ اور شیطان تمہیں اس سے بات سے روک نہ دے، اس سے روک نہ دے مطلب یہ جو بات ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، قیامت کے نشانی ہے عیسیٰ، قیامت کے ان قریب عیسیٰ کو اللہ دنیا میں اتارے گا۔ سمجھے آپ؟ تو شیطان روک نہ دے، یہ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ یہ سب چل رہا ہے آج کل، شیطان لوگ روک رہے نا، نہیں نہیں عیسیٰ مر گئے، نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، نہیں آئیں گے۔ یہ سب لوگوں میں تو قادیانی لوگ تو سب سے آگے پرچار کر رہے ہیں، پورا تبلیغ، اور دوسرے جو ہے اور بھی ہے نا، محمد شیخ، جاوید احمد گامدی، یہ سب لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بولے عیسیٰ مر گئے، نہیں آئیں گے۔ سمجھا؟ اور بھی عالم لوگ ہیں، لیکن یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ، تو تم شک مت کرنا۔ اتنا زور دے کے بول رہا ہے، ڈاؤٹ مت کرنا کہ عیسیٰ نہیں ہے، آئیں گے، عیسیٰ مر گئے، یہ سب مت ڈاؤٹ کرنا، شک مت کرنا، اور شیطان تمہیں کہیں اس سے روک نہ دے اس بات سے۔ سمجھا آپ؟ کہ نہیں عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ مر گئے۔ سمجھا آپ؟ یہ سب بات اللہ ایک دم زور دے کے بتا رہا ہے۔ پھر سوچیے آپ، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ مر گئے، نہیں آئیں گے۔ سمجھا آپ؟ عربی لفظ سے کھیلتے ہیں، عربی لفظوں سے کھیلتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر گزرے، 25 کا تو قرآن میں ذکر ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یوسف قیامت کی نشانی ہے، یا ابراہیم قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، کسی پیغمبر کو نہیں فرمایا کہ قیامت کی نشانی مطلب قیامت کے ٹائم آئیں گے تو وہ نشانی رہے گی کہ اپنے قیامت قریب ہے۔ کوئی پیغمبر کو اللہ نے بات کیوں نہیں بولا؟ صرف عیسیٰ کو کیوں بولا؟ کیونکہ سب پیغمبر مر گئے، اسی لیے اللہ نے یہ بات ان لوگ کے بارے میں نہیں بولا۔ سب پیغمبر مر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے، انتقال ہو گیا، ان کی قبر ہے سعودی میں، مدینے میں۔ سمجھا؟ صرف عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا آسمان پہ، اسی لیے ان کے بارے میں بولا کہ وہ آئیں گے دنیا میں، اللہ ان کو نازل کرے گا۔ سمجھا؟ اسی لیے ان کے بارے میں بولا عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، اور پیغمبر کے بارے میں اس لیے نہیں بولا کیونکہ سب لوگ مر گئے، سب پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے بارے میں نہیں بولا کہ یہ لوگ قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھا؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بولا پورے قرآن میں اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی، بولا کیا نہیں ہے پورے قرآن میں۔ نہ نوح کو بولا، نہ ادریس، نہ زکریا، نہ یوسف، نہ یونس، کوئی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں بولا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے۔ کوئی پیغمبر کو بولا کیا؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے۔ سورہ زخرف آیت 61 62 61 62 دونوں آیت دیکھو، اس لیے کہ زندہ ہے، اس لیے اللہ نے بولا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے۔ موت نہیں آئیں گے، دنیا میں آئیں گے، پھر وہ لڑیں گے اسلام کے دشمنوں سے، فتح کریں گے، اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ سمجھے آپ؟ اللہ کا گروہی جیتے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی آئے گی دنیا میں، ان کو بھی موت آنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چاہتا، ان کو موت ابھی نہیں آیا، اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ سب شیطانی چیلے لوگ ہیں جو روک رہے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو کوئی مانے نہیں، اللہ جب نازل کرے گا تو اکیلے آئیں گے، تو اکیلے لڑ سکتا ہے کیا کوئی بھی آدمی؟ پورے ملکوں سے، لاکھوں لوگ سے اکیلے آدمی لڑ سکتا ہے کہ آپ سوچیے؟ نہیں نا، اس کے لیے لشکر چاہیے، اس کے لیے ایک گروہ چاہیے، ایک جماعت ہے نا، تو اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی جڑے نہیں، عیسیٰ کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو، عیسیٰ کو ریجیکٹ کر دیں، اس لیے پہلے سے سب پروپیگنڈا پھیلا دیے پورے ورلڈ میں، مسلمانوں میں، کہ عیسیٰ مر گئے،
इंसान नहीं आएंगे, ये क्यों फैलाए? फैलाने की वजह है ना कि दुश्मन जानता है, दुश्मन कुरान को ज्यादा जानता है, आप लोग मुसलमानों से ज्यादा दुश्मन जानता है कुरान को, अहले किताब। समझा आप? अल्लाह फरमाए ना, ए नबी ये तुमको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, यानी वो पहचानते हैं कि नबी सच्चा रसूल है और ये कुरान सच्ची किताब है। यहूद नसारा जानते हैं, अल्लाह बताया ना कि वो जानते हैं तुमको ऐसे जैसे अपने बेटे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो उन लोगों को पता है कि कुरान सच्ची किताब और ईसा आएंगे, इसीलिए जब वो आएंगे तो बोलो कि आएंगे ही नहीं, दुश्मन चाल किया कि वो आएंगे ही नहीं, मर गए। ये सब फैलाया गया ना उन्हीं के जरिए, वो नहीं आएंगे, मर गए। समझा? ताकि आए तो लोग उसको रिजेक्ट कर दे। समझा? ये सब साजिश करी गई है, पूरे प्लानिंग, और अभी आसार तो करीब दिख रहे हैं, दुनिया के चल रहा है ना मार काट पूरी दुनिया में। समझा? तो और भी झगड़े और आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर भी चल सकता है, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। तो इसी दौरान अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा। समझे आप? तो ये जाहिल कौम लफ्जों से खेलती है। बोले मुतवफ़ी वर्ड है ना, सूरह माइदा आयत 117, वो पढ़ के लफ्जों से खेलते हैं। वो ईसा बोल रहे कि जब तक मैं उनके बीच रहा तो मैं उनको जानता था, जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू उनको जानता था। तो अरे भाई वो कयामत के दिन बोलेंगे, ये जो आयत है सूरह माइदा 117, वो कयामत के दिन बोलेंगे कि जब तक उनके बीच रहा तो मैं उनके ख्याल रखता था, जब तूने मुझे उठा लिया यानी अपने पास बुला लिया तो फिर तू उनके जानकारी रखता था। समझा? और मुझे उसके बारे में इल्म नहीं। तो मुतवफ़ी वर्ड बोले बोले वो इंतकाल हो गया। अरे मुतवफ़ी वर्ड तो अल्लाह ताला सब इंसानों के साथ कर रहा है। तो बोले मर गए तो नहीं आएंगे, मुतवफ़ी मतलब मर गए, वफात पा गए। तो हम लोग और आप जितने लोग हैं रोज रात को वफात पाते हैं, अल्लाह तो ये भी बता रहा, फिर हम लोग जिंदा कैसे होते? जब तुम बोलते हो कि वो इंतकाल हो गया अब नहीं आ सकते, तो हम लोग भी रोज रात में मरते हैं। सूरह ज़ुमर आयत 42 खोल के देखो, जब अल्लाह ताला रूह कब्ज़ कर लेता है, जिनकी मौत आई उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है, और जिनकी मौत नहीं आई उनकी नींद में रूह कब्ज़ कर लेता है। बोला है, देखो आप सूरह ज़ुमर आयत 42 खोल के देखो। नींद के वक्त हमारी रूह अल्लाह कब्ज़ कर लेता है, फिर जिसकी अभी उम्र बाकी है तो उसकी रूह को वापस लौटा देता है, फिर हम उड़ जाते हैं सुबह और काम धंधा करते हैं जब तक के मौत का टाइम नहीं है। और जिसकी मौत नींद में ही समझो है, कई लोग नींद में मर जाते, सुनते ना कि अरे रात को सोए उठे ही नहीं, तो उसकी रूह को अल्लाह कब्ज़ करके वापस नहीं डालता है, लौटाता है। तो रोज रात को रूह कब्ज़ करता है अल्लाह और लौटाता है आपकी हमारी रूह। हम सोते हैं ना रात को, तो रूह अल्लाह फरमा रहे हैं सबकी रूह कब्ज़ कर लेता अल्लाह। सोचो आप, तो हम लोग वापस आ रहे हैं ना, सुबह उठ रहे कि नहीं? तो वहां भी वही लफ्ज है मुतवफ़ी, तवफ़ा मतलब मौत दे देता है। तो फिर आप लोग सोच रहे हो वफात हो गई नहीं आएंगे, तो हम लोग तो वफात होके आ रहे हैं, वैसा वो भी आएंगे। उनकी उनको भी अल्लाह उठा लिया अपनी तरफ, जिंदा उठा लिया है। समझे आप? खेलते लफ्जों से। सूरह अनाम में भी यही बात लिखी है, देखो आप आयत नंबर 60 सूरह अनाम। अल्लाह सोते में रूह को कब्ज कर लेता है। समझा आप? नींद के वक्त रूह कब्ज कर लेता है, फिर लौटाता है कि नहीं? हम लोग सब उठते कि नहीं? रात में सब सोते तो रूह कब्ज कर लेता अल्लाह फरमा रहे, फिर लौटा देता है ताकि जिंदगी की हम उम्रें जितनी है उतनी गुजारे। रोज रात को रूह कब्ज करता है अल्लाह फरमा रहे। सूरह अनाम 60 और सूरह ज़ुमर आयत 42, फिर लौटा देता है हमारी। तो वैसे ईसा को भी अल्लाह ने उठाया है, जिंदा सुलाए रखा है, फिर लौटा देगा वापस। तो तुम लोग लफ्जों से खेल रहे हो। मुतवफ़ी लफ्ज है मतलब वफात पा गए, तो हम लोग भी तो वफात पाते रात को, तो फिर वो कैसे सुबह उठ के यहाँ जिंदा हो जाते? सारे इंसान जो सोते हैं ना रात को, जितने भी दुनिया में इंसान है, कोई भी कौम का मर्द हो या औरत, नींद के वक्त अल्लाह बोल रहा है, नींद के वक्त रूह कब्ज कर लेता है अल्लाह फरमा रहे। तो वफात दे के वो जिंदा करता है। समझा? लोगों को जैसा गुमराह करते हैं, जिसको कम इल्म है वो ऐसा फंस जाता है लोग आलिम लोग के चक्कर में। कुरान का परफेक्ट इल्म, मुकम्मल इल्म होना चाहिए कुरान की। कौन सी आयत किधर है, या लफ्जों से तुम खेल रहे, तो वही लफ्ज तो अल्लाह यहाँ इस्तेमाल किया है सूरह ज़ुमर में। जो लफ्ज से तुम खेलते हो मुतवफ़ी लफ्ज से, तो वही लफ्ज तो यहाँ इस्तेमाल किया है सूरह ज़ुमर सूरह अनाम में। तो
वफात पा गए तो फिर कैसा आ रहे हम और आप। तो वैसे ही ईसा को अल्लाह ने मुतवफिल लफ्ज डाला है, क्योंकि उठा लिया है ना अल्लाह ने और उनको रखा है, समझे आप। कितने 2000 साल हो गए, 2024 चल रहा है ना, 2024 साल हो गए ईसा अलैहि सलाम को। सोचो आप, 2000 साल हो गए, तो अब वो अल्लाह ताला उनको रखा है आसमान पे। आदम और हवा भी तो आसमान पे थे ना जन्नत में, तो आसमान से उनको उतारा कि नहीं नीचे, कौन लेके आया? फरिश्ते लाए होंगे ना, खुद तो उड़ के नहीं आए होंगे आदम हवा, उनको तो पर नहीं है आदम हवा पे, समझा। फरिश्ते पर है उनके, उड़ते हैं, वही लेके आते हैं, समझे आप। आदम हवा को लाए ना आसमान से, अल्लाह बोले जाओ नीचे उतरो, वहां जिंदगी गुजारना, फिर वही मौत आएगी, फिर वही कयामत के दिन उठना है। तो वैसे ही ईसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ने उठा लिया है और फिर फरिश्ते उनको लेके आएंगे। जिब्रील अलैहि सलाम, फरिश्तों के पर है ना, लिखा है ना सूरह फातिर में, फरिश्तों के 2-2, 3-3, 4-4 पर है, विंग्स है। तो फरिश्ते लेके आएंगे ईसा अलैहि सलाम को, अल्लाह ने जिंदा उठाया है, समझे आप। सूरह निसा आयत नंबर 157-58 गौर से पढ़ो। अल्लाह फरमा रहे कि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया, न सूली चढ़ाई, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। सूरह निसा आयत 157। सोचो आप, अल्लाह ताला बोल रहे हैं उन्होंने न ईसा को कत्ल किया न सूली चढ़ाई, यानी नहीं मरे वो लोग, ईसा अलैहि सलाम नहीं मरे, वो लोग नहीं मार पाए। उनकी शक्ल का या वैसे ही कोई इसी को मार दिया, बोले हमने ईसा को मार दिया, अल्लाह बोले ना उनको शुभा हो गया कि हमने ईसा को कत्ल किया, किसी और को मार देंगे यार, वही शक्ल का। अल्लाह ताला तो हर काम कर सकता है ना, अल्लाह की प्लानिंग तो अलग ही है, समझा। तो उन लोग ने किसी और को मार दिया, बोले हमने ईसा को कत्ल कर दिया और सूली चढ़ा दी। तो अल्लाह क्या फरमा रही है? फरमा रहे कि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न सूली चढ़ाई, बल्कि हमने उनको अपनी तरफ उठा लिया, समझा। और आगे फरमा रहे अल्लाह ताला 158 में सूरह निसा कि यकीनन उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया, यकीनन, समझा। तो आप लोग इतना वाज़ेह अल्लाह बता रहा है कि कत्ल नहीं किया, हमने अपनी तरफ उठा लिया, और तुम लोग बोल रहे नहीं मौत दे के उठा लिया है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? अवाम को गुमराह कर रहे कि मौत दे के उठा लिया। अरे जब मौत ही दे दिया अल्लाह ने तो उठाने की क्या जरूरत? सोचो आप, गुमराही फैलाने का अकल नहीं है। जो लोग बेअकल होते हैं ना वही झांसे में आते हैं। तुम लोग बोलते हैं कि मौत दे के उठा लिया, यानी अब नहीं आएंगे बोल रहे ना तुम लोग कि मौत दे के उठा लिया। अरे तो मौत दे दिया अल्लाह ने ईसा को, तो उठाने की क्या जरूरत है? जब ईसा मरी गए तो फिर उठाने की क्या जरूरत है ऊपर लाश को? मौत कब आती पता है? रूह कब्ज कर ली है तो मौत आ गई। जब अल्लाह ने मौत ही दे दिया ईसा को, तुम्हारे कहने के मुताबिक कि मौत दे दिया अल्लाह ने फिर उठा लिया, तुम बोलते अरे जाहिल जैसी बात, मौत दे दिया तो उठाने की क्या जरूरत? रूह फरिश्ते ले गए, जिस्म सड़ गल जाए, दफना दो, जला दो, कुछ भी करो, दुश्मन गोटी कर दे, क्या फर्क पड़ता? बातें करते भाई। मौत दे दी अल्लाह ने, तुम्हारे तुम जो कहते हो मौत दे के उठा लिया, अरे मौत दे दिया तो उठाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे ही वो लोग का मिशन था ईसा को कत्ल करना, सूली चढ़ाना। तो तुम बोलते हो कि नहीं वो अल्लाह ने मौत दे दी, वो लोग कत्ल नहीं किया, सूली नहीं चढ़ाया, अल्लाह ने मौत दे दी। तुम कहते हो, अल्लाह बोल रहे न उन्होंने कत्ल किया न सूली चढ़ाई, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। तो अल्लाह फरमा रहे तो क्या कुरान, तो कुरान हदीस भी नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा ही मेहदी है और कोई मेहदी नहीं। ईसा आएंगे, दुनिया में लड़ेंगे, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, समझे आप। तो आप मेहंदी को अलग एक फिरका, एक फिरका के सारे फिरके मेहदी मेहदी चिल्ला रहे, मेहदी आएंगे फिर ईसा आएंगे, ये भी दुश्मन ने दे दिया है ताकि ईसा अलैहि सलाम को रिजेक्ट। असल मकसद है ईसा को रिजेक्ट करना। असल मकसद क्या है बोलने का ये लोग का कि ईसा को रिजेक्ट करो, ईसा मर गए, ईसा नहीं आएंगे, और वहां फंसा दिए, और आएंगे तो मत कबूल करना। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मर गए नहीं आएंगे, और आएंगे तो नहीं ईसा नहीं। यहाँ अलग फंसा दिए, वहां अलग फंसा दिए, झूठी हदीस लाके कि पहले मेहंदी आएंगे फिर ईसा आएंगे। तो ईसा को अल्लाह जब नाजिल करेगा तो तुम लोग मुसलमान लोग को झांसा दिया मेहंदी आएंगे बोल के, तो ईसा को कहाँ कबूल करेंगे मुसलमान लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि मेहंदी के बाद ईसा आएंगे, पहले मेहंदी आएंगे। तो ईसा को आप रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे अभी तो मेहंदी नहीं आया, आप कहां से आ गए ईसा, दज्जाल हो तुम, धोखेबाज हो, समझा।
ईसा कोई कबूल नहीं करेंगे मुसलमान लोग, ये सब साजिश करे कि उनको हर एंगल से फंसाओ। उधर बोल दिया आएंगे ही नहीं, आएंगे अगर कोई दावा करे तो झूठा बोल दो, और आ भी गए तो बोला कुछ लोग मानेंगे, हाँ कुछ लोग मानते ना आएंगे ईसा, लेकिन वो ये भी मानते कि मेहंदी आएंगे फिर ईसा आएंगे, तो वहां अलग फंसा दिया मेहंदी का डाल के। मेहंदी मेहंदी कोई नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहंदी है, उनको ही मेहंदी कहा गया है। हदीस भी मानो, कुरान की आयत भी है, समझा आप। युकल्लिमुन्नास फिल मेहदी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 46। ईसा को मेहदी कहा गया। मेहदी का मतलब झूले में बात करने वाला, गोद में पालना, क्रेडल बोलते इंग्लिश में। तो ईसा को ही मेहदी कहा गया है। वही हदीस भी है कि ईसा ही मेहदी है, नबी ने फरमाया, इसके अलावा और कोई मेहदी नहीं है दूसरा, समझा आप। मेहदी एक टाइटल दिया गया है, पालने में गोद में बात की है ना ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम के गोद में थे, जब लोगों ने इल्जाम लगाया मरियम पे, अरे बिना शौहर के बच्चा कैसे हुआ, तो जब बदकारी का इल्जाम लगा रहे तो बच्चा ही बोल उठा गोद में कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी, समझा आप। तो गोद में बात की, झूले में, पालने में, क्रेडल बोलते हैं, समझा आप। तो इसीलिए उनको मेहदी कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम को मेहदी का टाइटल। गोद में कोई बच्चा बात नहीं किया सिवाय ईसा के, समझा आप। तो ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी, कुरान भी बोल रही, सूरह आले इमरान आयत 46-46, और हदीस भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा ही मेहदी है, इसके सिवा कोई मेहदी नहीं, समझे आप। तो आप लोग को तो मेहदी मेहदी देख के फंसा दिया गया। आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, वही मेहदी है, ईसा ही मेहदी में, पालने में बात करने वाले को मेहदी बोलते हैं। और दूसरी मीनिंग भी बहुत लोग लेते, हिदायत याफ्ता, तो हिदायत याफ्ता भी है ईसा, और पालने में भी बात की, तो ईसा ही मेहदी है। ये सही बात कुरान और सही हदीस की पहुंचा रहा हूं। बाकी ये जो दुश्मन लोग साजिश कर रहे हैं कि मेहंदी आएंगे, मेहंदी मेहंदी नहीं है, ये तो शिया लोग की किताब की हवाला है। शिया लोग का अकीदा सोच है कि इमाम मेहंदी आएंगे, समझे आप, 10 पारा लाएंगे, वो बात को तो दिल में रखे, जाहिर नहीं करते, इमाम मेहदी आएंगे, समझा आप। तो उनका हदीसों में वो डाल दिए, तो वो भी सारे अहले दिल भी मान रहे, शिया बरेली देवबंदी सब, कि मेहदी आएंगे, मेहंदी है। मेहंदी अलग है, ईसा अलग है, बोलो। हालांकि 21 शख्स है ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं को मेहदी कहा गया है। शिया लोग के दरवाजे पे लिखा रहता, देखो आप उनके घर पे, या साहिबुज जमा लिखा रहता ना, पूछो आप उनको कि ये या साहिबुज जमा आप किसको बोलते हो, बोले इमाम मेहदी को या साहिबुज जमा बोलते हैं, उनके स्टिकर लिखा रहता, समझा आप। जानकारी होगी आपको, ये सब जानकारी इसीलिए दे रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में, इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला ईसा कयामत की निशानी है, तो तुम शक मत करना, ये लफ्ज क्यों बोला है। और शैतान तुम्हें इस बात से कहीं रोक न दे, इससे रोक न दे, ये बात से कि नहीं ईसा नहीं है, ईसा तो मर गए, नहीं आएंगे, सब झूठी बात है। तो शैतान की बातों में नहीं आना, अल्लाह फरमा रहे, समझा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और हालात ऐसे कि आने ही वाले, समझा आप। मुस्नद अहमद की हदीस है कि जो ईसा का साथ देगा, जब ईसा आएंगे तो जन्नत में जाएगा। तो ईसा का कौन साथ देगा? कम लोग, क्योंकि कम लोग मान रहे हैं। बहुत लोग तो बोल रहे हैं आएंगे ही नहीं, ईसा मर गए, ये सोच बिठा लिए। कुछ लोग बोलते हैं मेहंदी आने के बाद ईसा आएंगे, तो मेहंदी तो कोई शक है ही नहीं, ना कुरान में ना हदीस में। वो हदीस में है जो घड़ी हुई, झूठी हदीस, सही है नहीं है वो। तो ईसा ही मेहंदी है, तो कोई और दो शख्स नहीं आने वाला, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही आने वाले, समझा आप। उन्हीं को अल्लाह ने मेहदी, कुरान में भी मेहदी कहा, ईसा को अल्लाह ने सूरह आले इमरान आयत 46-46 देख लो आप अरबी में, युकल्लिमुन्नास फिल महदी, कौन जो बात करेगा पालने में, कौन? ईसा। ऊपर से पढ़ते हो 43, 44, 45, 46 तो सब समझ में आएगा, समझा। और हदीस भी जो सही हदीस है उसको जालिम बोलते हैं कि झूठी हदीस है। ईसा ही मेहदी है, नबी ने फरमाया। नबी की सच्ची बात को छुटलाते, यही तो मुनकर हदीस तो असल में यही है। हम तो बोलते मुनकर हदीस, हम तो झूठी हदीस का इनकार करते, तुम लोग तो सच्ची हदीस की, नबी की बात का इनकार, और वो अल्लाह की बात है कुरान के मुताबिक, तो अल्लाह की बात का इनकार हो रहा है, समझा। सीधा जहन्नुम में है, पहचान ही नहीं है सही हदीस झूठी हदीस। रावी चेक करते ना सर, हदीस में गुमराह है। अगर कुरान से चेक करते हदीस को तो मैच हो रही है हदीस। ईसा ही मेहंदी, ईसा को मेहंदी कहा गया आले इमरान आयत 46 में। अरबी में देखो ईसा मेहदी, युकल्लिमुन्नास फिल महदी, और हदीस भी है ईसा ही मेहदी है, नबी ने फरमाया। कैसा मैच हो रही,
آپ لوگ کی تو نہ سر ہے نہ پیر ہے، امام مہدی آئیں گے، ایک آیت بھی نہیں ہے، کہیں اشارہ بھی نہیں پورے قرآن میں. سوچیے آپ، بچیے جھوٹ باتوں سے، جھوٹ بات کو مانے، اللہ کی سچی بات کا انکار. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے، والذین آمنوا بالباطل، آمنو مطلب ماننا، جھوٹ بات کو مانیں گے، وکفروا باللہ، اللہ کی بات کا انکار کریں گے، اولئک هم الخاسرون. سمجھا؟ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے جہنم میں جائیں گے. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.